everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 22nd June, आज 22 June है, and we are here with the Hindu analysis of 22nd June. That is Thursday. आज Thursday है, 22 June है, and we are here with the Hindu analysis. So let's start with the first topic. अगर मेरी आवाज आ रही है एक बार कमेंट में लिख दो yes sir you're audible so that we can start our session. Am I audible? Okay. This article is about Supreme Court denies relief to Enforcement Directorate in Tamil Nadu minister's case, leaves it to High Court to decide. Then here is an article about PM Modi lands in US Capitol to meet Biden today. And here there is an article about yoga. I hope you are aware that yesterday was International Yoga Day. तो कल इंटरनेशनल योगा डे था. हमने उसके बारे में डिस्कशन भी किया था, थीम्स वगैरह भी डिस्कस की थी, है ना. So let's start with the first one, that is Supreme Court denies relief to ED Enforcement Directorate in Tamil Nadu minister's case, leaves it to the High Court. Okay, now what happened was, I hope you are aware, I think a few days back it was in the news that the Tamil Nadu minister, Mr. Senthil Balaji, was arrested by Enforcement Directorate in money laundering case. So, and he was remanded in judicial custody till 28th June. Now, there is a homework. Go and find out what is the difference between police custody and judicial custody. इस दोनों के बीच का फर्क find out करो क्लास के बाद. Okay. So he has been sent to judicial custody till 20th June. Find out the difference between judicial custody and police custody. अब उसके बाद हुआ ये कि actually I hope you are aware the matter is actually in the Madras High Court because he was arrested and he is having some heart problem. So basically the doctor has recommended that a bypass surgery. So this bypass surgery is for actually हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम व्हेन देयर इज एक्चुअली जैसे ब्लॉकेज वगैरह होता है ना हार्ट में, ब्लॉकेज इन द हार्ट, और मतलब हार्ट या उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, मतलब वेन्स वगैरह जो भी है, इफ देयर इज ब्लॉकेज इन इट देन bypass surgery is recommended. And he's I mean after the arrest he's been actually taken to the hospital also because of his heart issues and all, and the doctors have advised him for bypass surgery. Now, the Supreme Court on Wednesday refused to give immediate relief to Enforcement Directorate and led entirely to the Madras High Court to decide actually about Tamil Nadu's minister moved to a private hospital has thwarted central agency's right to remand and all. पर मतलब ये हुआ था कि it has been actually recommended to private hospital कि private hospital ले जाया जाए इलाज कराने के लिए. Okay. So the ED has criticized the High Court for entertaining a habeas corpus petition filed by his wife. So actually his wife, the minister's wife, has filed habeas corpus petition. I hope this has been taught by the legal faculty, under Article 32. Yes, under Article 32, 5 famous writs are there. One of the most famous is habeas corpus. अच्छा इसका मतलब क्या होता है? Can you please tell me the meaning of habeas corpus? Police custody means police has the physical custody of accused, while judicial custody accused in the custody of concerned magistrate. Zoya Khan, you are partially correct, but not exactly. देखो पुलिस कस्टडी में एक्चुअली क्या होता है? The person is taken in the थाना और पुलिस स्टेशन. Judicial custody में a person is sent in jail. So when the person is sent to jail, the interrogation by police can be done only with the concerned magistrate's permission. Judge के permission के बाद ही. But in police thana, if it is if a person is sent to police custody, it is put in police station lockup. थाना में जो lockup होता है उसमें, and then the police can do interrogation. Okay, so you can say police custody is considered as more stringent, ज़्यादा सख्त माना जाता है and all. हाँ, habeas corpus means to have the body of, very good. हाँ, habeas corpus means to have a body of, yes. Okay, means to present the person and all. अगर कोई missing है या अगर नहीं मिल पा रहा है and all, that's हाँ. The agency said the High Court has allowed to be shifted to private hospital, denying AD its right to custodial interrogation.
सो ईडी ने ये कहा, मतलब ईडी के लॉयर ने कहा दैट एक्चुअली द मद्रास हाई कोर्ट हैव अलाउड हिम, द मिनिस्टर, to actually move the private hospital for actually I mean surgery and all. तो अलाउ कर दिया कि प्राइवेट हॉस्पिटल चले जाइए, thus denying the ED the rights to custodial interrogation. मतलब एक तरह से indirectly ED has been denied to interrogate the minister. मतलब ED को एक तरह से मतलब मौका नहीं मिला उनको इंट्रोगेट करने के लिए, because he has been shifted to private hospital. The High Court order on 15 June set a wrong precedent. That is what I mean. The Solicitor General has said. So of course, Solicitor General is government's lawyer and a second senior most lawyer of government. Second senior most lawyer of government, and of course he is actually he was fighting the case on behalf of Enforcement Directorate. ठीक है, ठीक है. सो ईडी जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, तो सॉलिसिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल, दे विल बी फाइटिंग ऑन द बिहाफ ऑफ ईडी. ओके, सो दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट सेड लेट द हाई कोर्ट डिसाइड इट. तो जो हाई कोर्ट कर रहे हैं वो ठीक है, हम लोग उसमें इंटरवीन नहीं करेंगे एक तरह से. दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड. ओके, यस. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. पीएम मोदी लैंड्स इन यूएस कैपिटल टू मीट बाइडेन टुडे. ये तो पता होगा आपको कि यूएस कैपिटल इज वॉशिंगटन डीसी. अच्छा, इसमें डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बता सकता है? सो वॉशिंगटन डीसी, पीएम मोदी लैंडेड ऑन वेडनेसडे आफ्टरनून टू किक ऑफ मेन पार्ट ऑफ हिज मेन विजिट एंड ऑल टू यूएसए, है ना. सो ही एक्चुअली मेट, आई मीन ही विल बी मीटिंग द प्रेसिडेंट एंड ऑल. तो ये सब आपको पता होगा. यस्टरडे ही डिड, सिंस यस्टरडे वाज इंटरनेशनल योगा डे. तो एक्चुअली क्या है, न्यूयॉर्क में थे कल. यूएन का हेडक्वार्टर आपको पता होगा न्यूयॉर्क में. आई होप यू आर अवेयर. So New York is slightly away from Washington DC. So the New York is actually the headquarter of United Nations. And here PM Modi was there for International Yoga Day. आप देख सकते हो. We have discussed in detail. Yes, Washington DC में DC का मतलब District of Columbia. Very good. बहुत सारे लोगों ने आंसर किया. Good. हाँ. Rashmikant, Gauri, learned everything. Gopal, Goel, you all are right. है ना. So yesterday we had discussed about the theme also. कि 2023 का थीम क्या है ना. वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इंटरनेशनल योगा डे. तो कुछ क्वेश्चन है योगा से रिलेटेड दैट आई वांट टू आस्क. ठीक है, ये कहा योगा ट्रूली यूनिवर्सल फ्री फ्रॉम कॉपीराइट एंड ऑल दैट मोदी जी सेड. तो लेट्स आस्क अ क्वेश्चन अबाउट योगा. द योगा सूत्र ऑफ एक्स इज अ कलेक्शन ऑफ संस्कृत सूत्र ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ योगा. आपको ये बताना है कि योगा सूत्र के फाउंडर कौन थे. हु इज द फाउंडर ऑफ योगा और योगा सूत्र? Your options are Gautam Rishi, Kapil Rishi, Patanjali, Jimut Vahan. What is the right answer to this question? सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. Everyone please press the like button and subscribe to our channel also. At least 30 plus likes ले जाओ guys. सबको. Yes. मतलब आपसे ये पूछा जा रहा है कि योगा सूत्र ऑफ एक्स, मतलब एक्स का मतलब है कि आपको पर्सन का नाम बताना है. ठीक है. Yes. Actually Patanjali is now very famous brand. बट यहां पर वो ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं. Here I am talking about a person. ठीक है. So Mr. Patanjali was actually the founder of Yoga Sutra. Okay, yes, very good. Priya, Chavan, Saurabh, Gauri, Jyoti, Sania, Rashmikant, Muskan, बहुत से लोगों ने आंसर किया. I cannot take everyone's name. देखो योगा सूत्र ऑफ पतंजलि, एक्चुअली नाम यहीं से लिया गया है. So Baba Ramdev's company is also Yoga Patanjali. So the name has been taken from here. So he is considered as the founder of yoga. ठीक है, और योगा सूत्र और योगा फिलोसफी whatever you can say. ठीक है. So you can read about him. Patanjali was a Hindu author, mystic and philosopher. Very little is known about him, but he was perhaps around 2nd to 4th century CE. CE मतलब AD. ठीक है, Christ era. And he is credited with actually the Yoga Sutra, classical yoga text and all. तो मतलब अगर ऐसा भी पूछा जाए कि who is considered as the founder of yoga school, इस तरह करके क्वेश्चन आता है. So the answer would be Patanjali. ठीक है. C is the right answer to this question. हाँ, आपको पता होना चाहिए. Okay, let's move on to the next one. Yes, on 25th June at 11 a.m. in the morning, we'll be having a scholarship test. If you qualify this test, you will get up to 90% of a scholarship on this paid courses. Okay, where we are providing 300 plus recorded videos, 300 plus hours of live session, 35 plus mock test. If you have any question, call on this number. अगर आप इसमें क्वालिफाई करोगे तो 90% स्कॉलरशिप इस कोर्स में मिल जाएगा. और यू आर प्रोवाइडेड ए
3 day free trial as well. तो 3 दिन का फ्री ट्रायल है, इसको आप अटेम्प्ट करो, ठीक है. That also you should attempt. You can try it, है ना. So download the app, go to CLAT section where you will get this free trial. या लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से भी आप you can try for the free trial. Okay, let's start with the editorials. तो 1 2 3 4 editorial. ये जो मेन editorial है इंडिया नेपाल टाइज से रिलेटेड है. Basically he is talking about Nepal. At some places he has gone extremely in detail and talked about the internal politics of Nepal. तो internal politics of Nepal तो हम लोग नहीं डिस्कस करेंगे, इसलिए कि वो आपके लिए काम का नहीं है. Okay, but other than that, let's discuss about it. On his return to Kathmandu after concluding a 4-day official visit to India, Prime Minister of Nepal Pushp Kumar Dahal Prachand described it as successful. अब देखो, I hope you are aware, he is actually the Prime Minister of Nepal. He became the Prime Minister of Nepal in December last year. Okay. Now he recently came to India and met PM Modi. ठीक है, अभी ये 1 जून का आर्टिकल है, यानी hardly 20 days back you can say he was in India. तो इनका नाम पुष्प कुमार दहल है, प्रचंड भी लिखते हैं, पुष्प कुमार दहल प्रचंड. प्रचंड you can say is a sort of his nickname. Okay, इस तरह उनका नाम लिखा था, देखो ना, पुष्प कुमार दहल प्रचंड. And he described it as successful. तो जो इंडिया का उनका विजिट था, उन्होंने कहा कि एक सक्सेसफुल विजिट था. He is a former ambassador who has written an article. ये खुद नेपाल में एम्बेसडर रह चुके, इंडियन एम्बेसडर टू नेपाल. ओके, सो ही इज अर्लियर आल्सो ही विजिटेड इन 2008 16 23 में भी, मतलब पहले भी विजिट्स हो चुकी है प्राइम मिनिस्टर्स की एंड ऑल. सो दिस वन इज कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल एंड ऑल. अब देखो, नाउ ही इज गोइंग इन डिटेल अबाउट हिज इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स. ठीक है, अंदर मतलब नेपाल में क्या क्या इलेक्शंस हैं, कि अंडर हिज लीडरशिप माओइस्ट सेंटर, उसमें बहुत सारी पार्टी है, नेपाली कांग्रेस, ठीक है, यूएमएल इज आल्सो अ पार्टी. अब इतना डिटेल आपको नहीं जाना है, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. आई डोंट थिंक इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल वुड बी आस्क्ड इन एग्जाम, सो दैट इज व्हाई आई एम स्किपिंग इट. इसको आप स्किप कर सकते हो. बस कुछ चीजें पता होनी चाहिए. आई होप यू आर अवेयर. सो दिस इज नेपाल. दिस हियर यू विल फाइंड समवेयर काठमांडू व्हिच इज द कैपिटल ऑफ नेपाल. तो इसी से काठमांडू से न्यू दिल्ली गए थे. ओके, सो सम इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह बहुत सारे चल रहे हैं, which actually is connecting India as well. ठीक है, so National Hydroelectric Power Corporation, the cooperation between India and Nepal in this sector is very high. जैसे एक वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है बुतवाल टू गोरखपुर, तो इसको कहते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन. ऐसा आपने देखा होगा, कभी देखा है? If you travel on highways or through rail train, you will find these type of things. बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लगे रहते हैं जो 2 से मल्टीपल शहर को कनेक्ट करते हैं. ठीक है, ओके. सो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पर बुटवाल एक जगह है नेपाल में, और गोरखपुर है ईस्ट यूपी में. देखो ये वाला उत्तर प्रदेश है, दिस वन इज यूपी, दिस वन इज उत्तर प्रदेश, हियर इज लखनऊ, हियर इज गोरखपुर. सो गोरखपुर से बुटवाल जो है वो कनेक्ट करेंगे this one. ठीक है, बुटवाल is the place in Nepal, so that will be connected through this high voltage transmission and all. ठीक है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए. एक और है मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन, यानी पेट्रोल का पाइपलाइन होगा. सो अगर आप और से देखो तो यहाँ पर ये वाला अगेन, लेट मी जूम इट. हाँ देखो, यहाँ देखो, दिस इज बिहार, ये वाला बिहार स्टेट है ना. आपको पता होगा, दिस इज अ प्लेस, वेरी फेमस प्लेस इन बिहार कॉल्ड एज मोतिहारी इन ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. एंड हियर इज अमलेखगंज is actually near to the border in Nepal. So this will be connected with what? Petroleum pipeline. ठीक है, so that is what you should be knowing it. Okay, yes. तो इसी कुछ examples वगैरह बता रहे हैं. Then he is talking about अग्निपथ. देखो, गोरखा soldiers जो होते हैं, I hope you are aware, एक in fact Indian Army का गोरखा regiment है. Okay, and many of them are actually Nepali people. So we have allowed actually them to actually be a part of Indian Army. ठीक है, so earlier वो British Indian Army के part होते थे and all. But what happened was recently there were some issues regarding Agnipath. जब Agnipath scheme आया, so there were some issues regarding it in Nepal about the Gorkha soldiers being recruited and all. इस तरह की काफी आर्टिकल वगैरह आ रही थी अग्निपथ स्कीम में, impact ties with Nepal and all. Then this is an ORF, Observer Research Foundation article talking about India's Agnipath scheme and the impact on ties with Nepal. तो इस तरह के कुछ न्यूज आ रहे थे कि because a lot of Gorkhas are actually there in Indian Army. ठीक है, गोरखा एक पूरा सेपरेट रेजिमेंट भी है, आपको पता होगा.
So that is what is being talked about in this article. फिर उसके बाद ये है, then they are talking about Indo-Nepal Treaty of Peace and Friendship of 1950. ठीक है, देखो यहाँ पे डिबेट ये है, काला पानी बॉर्डर इशू. दिस इज एक्चुअली आस्क्ड इन क्लैट 2020. जो लिखा ना है कि द इशू इन 2020 है ना, ये देख रहे हो क्लैट 2020 में इस पे पूरा क्वेश्चन आया है. तो लेट मी शो द क्वेश्चन फर्स्ट. सो प्लीज आंसर दीज क्वेश्चंस because this is a previous year question, so I'm expecting you all to answer it. तो यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, वो क्लैट 2020 में इशू था, वो क्लैट 2020 में आ गया था. The confusion between Nepal and India consists of a dispute over tri-juncture of what? And these are the 4 options. What is the right answer to this question? सबको like button press कर दो. Everyone please press the like button. सबको 30+ likes ले जाओ. Yes. Anyone? Yes, very good. So अच्छी बात है कि आप लोग तैयारी कर रहे हो अच्छे से. The right answer is option C, काला पानी, लिम्पा या दुरा, लिपू लेक. Yes, गौरी, गोपाल, प्रिया चवन, रश्मिकांत. Yes, you all right. हाँ, और भी जिन्होंने आंसर किया, नितिका, गरिमा, सानिया अंसारी. देखो, here is Nepal. Okay, let me zoom it further. और ये है उत्तराखंड, है ना. तो यहाँ पर इशू हुआ था दिस रीजन में. ठीक है, सो दिखाता हूँ. दिस इज उत्तराखंड और ये वाला नेपाल है ना. तो यहाँ पे काला पानी रिवर जाती है, ये वाली रिवर ऐसे यहाँ से जाती है ना, ऐसे. तो ट्रीटी ऑफ सुगौली के हिसाब से ये ना अग्रीमेंट है. देयर इज एन अग्रीमेंट, ट्रीटी ऑफ सुगौली वाज साइंड. ठीक है, दैट दिस रिवर वुड एक्ट एज द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. अब इसमें डिस्प्यूट ये हो गया था कि रिवर यहां से जाती है कि यहां से जाती है. ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू नेपाल द रिवर द मेन कोर्स इज दिस वन. तो ये इसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी टाइप है. सो नेपाल सेज कि दिस रीजन, this region belongs to Nepal, according to Nepal, but we believe that according to Treaty of Sugauli, this is actually the main course and hence this region belongs to us. ठीक है, तो ये मेन डिस्प्यूट है. तो यहाँ पे लीपू लेक पास है, जैसे अगर उत्तराखंड का ना, तो ये लीपू लेक पास है. यहाँ पे लिम्पायोदुरा पास है. तो नेपाल का क्लेम है कि ये वाला हिस्सा, दिस रीजन इज एक्चुअली पार्ट ऑफ नेपाल, बिकॉज नेपाल सेज कि ये वाली जो रिवर है ये मेन कोर्स है रिवर की. बट वी बिलीव कि नो, दिस इज द मेन कोर्स ऑफ रिवर और इसीलिए ये हमारा पार्ट है. Okay, so this was a dispute and all regarding it and all. तो यही लिम्पायोदुरा, लीपू लेक और काली महाकाली, these are the what was in the news, है ना, काला पानी. So C is the right answer to this question. ठीक है, ओके, आप समझ गए ना. तीनों रीजन मैंने हाईलाइट कर दिया, ये और ये यहाँ पर है. लिम्पायोदुरा पास, लीपू लेक पास और ये महाकाली रिवर या काला पानी जिसको भी कह सकते हो. ये काला पानी डिस्प्यूट ये है यहाँ पे. ठीक है, so these were in the news. ओके, द नेक्स्ट इज ट्रीटी ऑफ सुगौली की. अभी मैंने बात की 1815-16 के आसपास साइन हुआ था. इट वाज साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स. ये भी उस टाइम पर न्यूज में था. बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर. सबको लाइक बटन प्रेस करते जाओ. प्लीज प्रेस द लाइक बटन गाइस. यस, अभी मैं आपको हिंट भी दिया हूं, 1815 से 16 के आसपास. देखो, बच्चे बता रहे इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, एक और ऑप्शन नीचे में दिया है सिमिलर. अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. 1858 से पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग इंडिया. ये पता है आपको. एंड आफ्टर 1858 एक्चुअली इट वेंट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड ऑल. ठीक है, अब देखो ये दोनों तो नहीं होगा. कंफ्यूजन ए या डी में, तो मोर परफेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी, इसलिए कि मैंने आपको ईयर बता दिया. एक्चुअली उस टाइम पर न्यूज में था 1815-16 में ट्रीटी ऑफ सुगौली हुआ था. देखो लिखा होगा ना. तो इन 1816, यस ना, यूके भी कहना ठीक नहीं रहेगा उतना. ठीक है, सो एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू ना, बिफोर 1858 इट वाज रूल्ड बाय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. सो द मोस्ट परफेक्ट आंसर वुड बी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नेपाल. ठीक है, सो द राइट आंसर वुड बी डी इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, आप समझ गए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से पहले इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग. लेटर ऑन इट वेंट टू द हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन एंड ऑल डायरेक्टली, है ना. ओके, यस, द राइट आंसर इज डी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर गए, हमने नहीं दिया, एग्जाम क्लैट वालों ने दिया. सो यू शुड बी नोइंग इट. नाउ द नेक्स्ट इज रिसेंटली, मतलब उस टाइम पे न्यूज में था, रिसेंटली मैप वाज क्लेमिंग लीपू लेक पास एज पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इंक्लूडेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हाट. मैंने अभी बताया कि नेपाल ने क्लेम किया था कि लीपू लेक उनका हिस्सा है. सो दैट वाज व्हिच डिस्ट्रिक्ट.
कैलाली, दारचूला, दीपायल, दोती। चूंकि नेपाल के बारे में न्यूज में, इसीलिए मैं ये सब सवाल पूछ रहा हूं। देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते। लेट्स वेट। देखो ये मैं बताया था अभी, मैंने जहां पे मैप में दिखाया भी कि वी बिलीव दैट दिस इज आवर पार्ट, है ना, ये पूरा हिस्सा हमारा है, लिपुलेक इज आवर पार्ट। बट नेपाल ने क्लेम किया कि ये नेपाल का पार्ट है, मींस नेपाल वाज क्लेमिंग कि लिपुलेक बिलोंग्स टू नेपाल। ओके, तो ये तो पूछ रहे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये वाला। ओके, so the right answer is actually Darchula. B is the right answer. Yes, Gauri, Dhananjay, Rashmikant, Sania, Rita, Priya Chavan, you all are right. B is the right answer to this question. Okay. Yes. Let's talk about the next article. Side में जो article थी, Manipur's government decision to extend net shutdowns lacks merit. तो actually क्या है, इंटरनेट शटडाउन्स पर बहुत इश्यूज होते हैं। इंटरनेट शटडाउन नाउ, तो दोज हु सपोर्ट इट, तो सपोर्टर्स क्या कहते हैं, तो सपोर्टर्स ये कहते हैं, आई मीन दोज हु सपोर्ट इंटरनेट शटडाउन, मतलब क्यों, व्हाई, बिकॉज राइट्स हैव टू बी कंट्रोल्ड, अदरवाइज इफ इंटरनेट इज अलाउड देन मे बी फेक न्यूज कैन बी स्प्रेड और हार्मोनी माइट बी डिस्टर्ब्ड। ये बताते हैं ना कि मतलब हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाएगा इंटरनेट पे फेक न्यूज फैला होला करके। बट देयर इज अदर साइड आल्सो कि कंटिन्यूड इंटरनेट शटडाउन नहीं कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज इट विल अफेक्ट द डिजिटल इकोनॉमी। दिस इज अ सेपरेट टर्म कॉल्ड एज डिजिटल इकोनॉमी। मतलब सारी चीज अब इंटरनेट से चलती है। आप जितना भी टिकट बुक करते हो, एजुकेशन, हेल्थ, फोन, आप मोबाइल इंटरनेट हमेशा नहीं बंद कर सकते हो, बिकॉज दिस इज नाउ दिस हैज बिकम अ पार्ट ऑफ द लाइफ। सो इसीलिए दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी। इट इज देयर इज अ नीड टू बैलेंस बोथ, राइट? सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। इन फैक्ट द हिंदू एडिटर्स आर एक्चुअली क्रिटिसाइजिंग इट कि इतना लंबा इंटरनेट शटडाउन नहीं होना चाहिए। सो आई होप यू आर अवेयर दैट थिंग्स आर नॉट फाइन इन मणिपुर, बिन वायलेंस एंड ऑल। तो इसमें ये बोल रहे हैं इंटरनेट एक्सेस इज a designated place in state after a petition seeking restoration of net access. So actually someone filed a petition in Manipur High Court to restore the internet. इंटरनेट वापस लाया जाए, उसके लिए पिटिशन लाया गया। सो मणिपुर हाई कोर्ट अलाउड इंटरनेट एक्सेस एट डेजिग्नेटेड प्लेसेस। कुछ जगह पर अलाउ किया है कि इंटरनेट चलना। ओके, सो व्हाई, आई मीन बिकॉज द शटडाउन्स बिगिन फ्रॉम 3rd मई एंड इट हैज द ऑर्डर हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 25th जून। तो अभी ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से 25 जून तक इंटरनेट बंद है, बट मणिपुर हाई कोर्ट ने कहीं कहीं पर डेजिग्नेटेड प्लेस पर अलाउ किया है। ओके, नाउ सो दैट इज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब जितना भी ऑनलाइन बिजनेस होता है, लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसे आप मंगवाते हो, सब बंद हो जाएगा। इंटरनेट, ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन लर्निंग, बहुत कुछ होता है ना, ऑनलाइन टिकटिंग। Nowadays we are completely dependent on internet, so that is why we cannot stop it and all, I mean completely. We have to find some middle path and all. तो इसी की वो बात कर रहे हैं। I hope you are aware there have been violence and all. I mean things are not fine between Meetis and Kukis community and all. तो इसी सब की न्यूज था। Then the Supreme Court is quoting Anuradha Bhasin case. This is very important actually. This is related when internet shut down in Kashmir. So this is related with that. Okay, it held that the indefinite suspension of internet services was in contravention to the law of freedom of speech and freedom to carry out commercial work. तो indefinitely नहीं सस्पेंड किया सकता है, यानी कंटिन्यूअसली नहीं किया सकता है, कुछ दिन कुछ वक्त के लिए। So it can be done for some specific time purpose, but not for indefinite purpose. That is what the Supreme Court has said, because it will, violate the fundamental right. So now it has become a right, in using internet and all. So that is what it is. और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की बात किया गया, यानी जितना इम्पैक्ट हो उतना ही उसकी प्रोपोर्शनल शटडाउन हो। ओके, सो दैट इज व्हाट हैज बीन टॉक्ड अबाउट हियर। तो मतलब बेसिकली द एडिटर्स आर एक्चुअली स्लाइटली क्रिटिकल ऑफ द मणिपुर इंटरनेट शटडाउन एंड ऑल। तो इसी की बात हो रही है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर। ओके, यस। नाउ अब साइड में एक और आर्टिकल है नीचे में, स्पेयर अ थॉट फॉर साइकेट्रिक केयर गिवर्स। अब देखो साइकेट्रिक, आई मीन इट्स टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ एंड ऑल। ओके, तो इसमें बता ये रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ मिशन 6 to 7% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन सफर फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। 6 से 7% इंडिया की आबादी जो है उसको मेंटल डिसऑर्डर है। ओके, मतलब मेंटल इलनेस है। That is 1 in our 4 families likely to have at least one member with a behavioral or mental health issue. अगर 4 फैमिली है उसमें से एक फैमिली के एक बंदे को होगा, मतलब ये कहने का मतलब है ना। So the situation worsened during COVID-19. Yes,
the issues of mental health increased in COVID-19. ये भी एक बात है जो कि सच्चाई है कि कोविड में people lost the jobs, some people lost their loved ones, some people actually because of lockdown and all घर पे बैठे रहने से भी थोड़ा सा mental health issues था. So these things were in the news. Most of these cases remain untreated due to ignorance and social stigma. तो बहुत सारी चीजें, हाँ, अनट्रीटेड ड्यू टू इग्नोरेंस एंड सोशल स्टिग्मा. तो मेंटल हेल्थ में ये दो बड़ी चीज होती है. दैट इज द मेन थिंग. एक है इग्नोरेंस, यानी लोगों को पता नहीं होता है व्हाट इज मेंटल हेल्थ डिजीज. मेनी पर्सन डू नॉट नो कि व्हाई आई एम फीलिंग बैड एंड ऑल. सोशल स्टिग्मा मतलब समाज उसको अच्छा नहीं समझता है. सो इफ समवन इज सेइंग कि आई हैव मेंटल हेल्थ इश्यूज, पीपल मे मेक फन ऑफ हिम और हर, और पीपल विल से कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है. सो बिकॉज जनता को मतलब कॉमन मैन डू नॉट नो कि दिस इज अ डिजीज एंड दैट इज व्हाई अ पर्सन नीड्स टू कंसल्ट अ डॉक्टर or whatever the psychiatrist concerned. तो लोग समझते हैं कि मतलब ये बीमारी ही नहीं है. That is an issue. So why this is an issue? Because unless and until you will find or you will believe that this is a disease, you won't go to the doctor. अगर उसको पता ही नहीं है कि ये बीमारी है इसके लिए, तो वो कैसे मानेगा कि डॉक्टर के पास को जाना चाहिए. तो सोशल स्टिग्मा भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना. ये पता होना कि yes he or she is suffering from that, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. The next is most of these cases remain untreated due to ignorance and social stigma. बता दिए. Most of, यानी ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि उसको, मरीज को भी नहीं पता होता है कि वो मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है. and all that is what is being talked about. In the absence of visible proof of illness, deviation behavior are generally attributed to attitudinal issues, marital troubles, financial jobs, stress and all, है ना. तो कई सारे कारण हो सकते हैं मेंटल हेल्थ के. जैसे the author is talking is कि कुछ एटीट्यूड का इशू हो, मैरिटल इश्यूज यानी हस्बैंड वाइफ में कन्फ्लिक्ट हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, जॉब का प्रॉब्लम हो, कोई जॉब लॉस हो, समथिंग लाइक दैट, लव अफेयर्स वगैरह, या एग्जाम के स्ट्रेस से भी. नॉट इज दिस इज ऑल्सो बिकमिंग सीरियस इशू. इसीलिए जब भी आप तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा आप रिलैक्स भी फील किया करो कभी कभी, है ना. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो बैलेंसिंग द एजुकेशन, योर स्टडीज एंड मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई एनी एग्जाम. ठीक है, तो दोनों को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ठीक है, तो इसी के देखो ये मिथ्स, स्टिग्मास एंड टैबूज की हर जगह बात करें कि समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता है. आई मीन द सोसाइटी डू नॉट एक्सेप्ट दिस टू बी अ हेल्थ इशू. ओके, सो देयर आर सो मेनी टैबूज एंड स्टिग्मा अराउंड इट. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ओवर 90% ऑफ साइकेट्रिक पेशेंट इन इंडिया लिव विद देयर फैमिलीज. तो 90% लोग जो हैं वो अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं. The caregiver is under considerable stress because of the physical and emotional caregiving along with social isolation. ठीक है, the caregiver मतलब होता है the one who is living with the mental health patient. ठीक है ना. उसको भी काफी सारे स्ट्रेस वगैरह होते हैं ऑफ कोर्स जो उसके साथ रह रहा है. all that is what is being talked about. A patient's non-adherence to treatment prevalent in such cases further exacerbate. देखो यही प्रॉब्लम है. अगर कोई, if the patient is suffering from mental health and the patient is not going to the doctor or not getting the treatment, it will exacerbate, यानी increase the problem. ठीक है, अगर वो कोई मेंटल हेल्थ इशू है, वो डॉक्टर के पास जा ही नहीं रहा इसलिए कि उसको पता ही नहीं है कि बीमार है वो, तो उससे और समस्या, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी उसकी भी, और साथ में जो केयर गिवर यानी उसके साथ जो रहता है उसके सपोर्टिव एंड ऑल. ओके, दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट. Chronic mental illness in a nuclear household disrupts daily life, drains family resources. Of course, बहुत ज्यादा क्रोनिक मतलब सीवियर. अगर किसी को बहुत ज्यादा मेंटल इलनेस है तो उससे घर वाले पर असर पड़ता है, फैमिली रिसोर्स खर्चे हो जाते हैं. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. वुमेन केयर गिवर फेसेस चैलेंजेस इन बैलेंसिंग केयर गिविंग, कैरियर, चाइल्ड रियरिंग एंड ऑल. मतलब अगर कोई औरत है वो केयर गिवर, मान लो किसी का हस्बैंड है उसको मेंटल हेल्थ इशू है, तो औरत है उसको जो है कैरियर मतलब उसको अपना कैरियर भी देखना है, चाइल्ड रियरिंग भी करना है, हाउस होल्ड कोर्स एंड ऑल है, उसके बाद केयर गिविंग भी करना है हस्बैंड या जो भी मेल है मतलब घर में. So that is what is being talked about here. तो इसी की बात हो रही है. So that is what is being talked about. So इसी की मतलब if you're interested you can read it. National Health Mission की बात की है, District Mental Health Program the author has talked about. ठीक है. So go and read it about it. I have discussed in detail about this in short, है ना. तो then he is talking about ये भी कि mental health institution इंडिया में lack करते हैं. Lack of mental health institution and lack of psychologist in India. ठीक है, तो साइकोलॉजिस्ट की भी कमी है, डॉक्टर्स और होने चाहिए. वी नीड टू हैव मोर डॉक्टर्स एंड साइकोलॉजिस्ट टू ट्रीट दिस इश्यूज एंड ऑल. अब एक साइड में आर्टिकल है. अच्छा हाँ, एक और है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट वाज आल्सो पास्ड. ये इंपॉर्टेंट है. देखो होता क्या है कि सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी टॉक्स अबाउट
अटेम्प्ट टू सुसाइड को ना पनिशेबल ऑफेंस माना गया था, बट मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया. इट वाज डीक्रिमिनलाइज. Why? Because let's say a person is in depression and he's attempting suicide. He or she, God forbid. In that case, actually, if the attempt fails, then he will be punished also. तो उसको सजा हो जाएगी, जो कि नहीं होनी चाहिए, because he is having problems. तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में उसको करेक्टिव स्टेप्स लाया गया था. Means the things were changed, and 309, I mean, the attempt to suicide was decriminalized, especially if someone is suffering from the mental health issues. So just have an idea about that. Now, इसी की बात हुई थी. Now let's talk about this article. Side में article थी. Poor living conditions have exacerbated the heat effect of heat waves. Poor living conditions. Exacerbated मतलब होता है increase the problem. समस्या बढ़ा देना. Poor living conditions means condition बहुत अच्छी नहीं है, मतलब किसी का घर बहुत अच्छा नहीं है, proper नहीं है and all. तो heat, I hope you are aware the entire North India is suffering from heat waves. यूपी बिहार में काफी ज्यादा heat waves है. So those who do not have a proper home, जिसके पास अपना घर प्रॉपर नहीं है, या मतलब झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, उसको इश्यूज है ना, बिकॉज दे विल गेट अफेक्टेड बाय हीट वेव्स एंड ऑल. सो अब देखो इस तरह की न्यूज आ रही, कहीं पे आ रहा है 100 लोग मरे, कहीं कुछ आ रहा. वी डोंट नो एग्जैक्टली द नंबर्स, इट्स डिफिकल्ट टू फाइंड आउट, बट येस इट इज इंपॉर्टेंट दैट हीट वेव्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, एंड वी हैव टू एड्रेस इट. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो कुछ इंसिडेंट्स वगैरह इन्होंने कोट किया है. अब उतना इंसिडेंट्स पे नहीं जाना है, बट येस वी शुड बी नोइंग अबाउट इट दैट इन यूपी एंड बिहार, आई मीन हीट वेव्स इज एक्चुअली स्ट्राइकिंग वेरी बैडली एंड ऑल, एंड मेनी आर एक्चुअली गेटिंग अफेक्टेड. ठीक है. अब उसमें कुछ चीजें हैं जो ख्याल रखना पहले है कि ड्रिंक वाटर लॉट, है ना. जब भी आप घर से बाहर निकलो, whenever you come out of the house, okay, you should drink a lot of water. ठीक है. एक चीज कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पी के जाओ. दूसरी चीज ये है कि टाइमिंग. ओके, सो अवॉइड कमिंग आउट फ्रॉम, अगर 11 AM से लेकर के 4 PM तक, 11 बजे सुबह से 4 बजे शाम तक, या 5 PM तक एटलीस्ट अवॉइड कमिंग आउट ऑफ होम. ठीक है. अगर हो सके तो अवॉइड करो, ना निकलो घर से बाहर इस वक्त, बिकॉज दिस इज द टाइम स्पेशली ये वाले टाइम पर, मतलब जो 2-3 बजे ये वाला टाइम जो होता है ना, 2, 3 और 4, इस टाइम पर सबसे ज्यादा एक्चुअली हीट होता है, लैंड भी हीट हो जाता है ना, इसीलिए. सो यू शुड अवॉइड गोइंग, आई मीन 2, 3 और 4 में घर से बाहर निकलना. दैट्स इंपॉर्टेंट. टेक अ लॉट ऑफ वाटर. इफ अगर आपको बाहर निकलना, इफ यू वांट टू कम आउट बिकॉज ऑफ सम रीजन, यू शुड टेक अ लॉट ऑफ वाटर एंड ऑल. ठीक है. फिर एक ओपिनियन पेज में आर्टिकल थी, रीथिंकिंग द रिटेंशन ऑफ सेडिशन. Is a former police officer and he has written this article. Which of the following talks about sedition? Your options are Constitution of India, Section 124A of CRPC, Section 124A of IPC, Section 295A of IPC. Your time starts now. बताइए, सेडिशन की बात कौन करता है इसमें से? Yes, the right answer actually to this question is Section 124A of IPC. So C is the right answer. Yes, Gauri is right. C is the right answer to this question. तो इसी की वो बात कर रहे हैं, है ना. अब देखो इसमें कुछ चीजें हैं. Yes, student Gauri, you all are right. C is the right answer. CRPC नहीं, IPC, ये वाला. Yes, Gopal, Goel, Rita, Solanki, Sania Ansari, you all are right. अब देखो, so he is talking about Section 124A of Indian Penal Code on sedition. ठीक है. Yes. हाँ, सब कोई लाइक बटन प्रेस करते जाना गाइस. 30+ लाइक्स ले जाओ. So देखो, actually last year Supreme Court in this case, SG Wombard-Kere case, stayed the sedition law. Okay, stay लगा दिया था sedition law पर. So further no sedition laws can be used. But the trial is अभी case चल ही रहा है इसमें ना. But at the same time, recently the Law Commission has said opposite. Law Commission has said sedition should be there. Rather the punishment should be increased. है ना. Minimum punishment को और increase कर देना चाहिए, ये Law Commission ने कहा है. So that is what he is talking about. Now, who is the chairperson of the 22nd Law Commission? I have discussed it earlier also. Your options are Justice B.N. Sri Krishna, Justice Ritu Rajavasti, Justice U.J. Lalit, Justice G. Rohini. Your time starts now. बताइए, कैसी जवाब है? मैंने डिस्कस किया कई बार. Yes, Justice Ritu Raj Avasti. So B is the right answer. Gauri, Sania Ansari,
student Priya Chavan, yes, you are right. Gopal Goel. And Justice Ritu Rajavasti is the 22nd Law Commission Chairman, former Chief Justice of Karnataka High Court. So he has actually talked about this, we need to increase the punishment of sedition and all. This is about detail making. He is talking about it. He is giving arguments and all about the Maoist and all. कुछ चीजें पता होना चाहिए कि Maoist कौन से रीजन में. So Maoist are actually mostly in these regions, छत्तीसगढ़, ओडिशा, ये सब रीजन में, है ना. So अब इसमें इतना डिटेल आपको नहीं जाना है, ठीक है, कि he is giving arguments कि इस टाइम पर ये हुआ, फिर इस टाइम पर ये हुआ, these are the laws. He is giving some arguments and all. So you are not supposed to go in detail about that and all, ठीक है. अच्छा, एक और क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल जेंडर इंडेक्स? योर ऑप्शंस आर 135, 150, 127, 119. व्हाट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया की रैंक लेटेस्ट अभी आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशूज दिस, है ना. बताइए. Yes, the right answer is option C, 127. Gauri Priya Chavan Ranjana, you are right. C is the right answer. India climbs to 8 places. तो पहले 135 था, 127 हो गया. In global gender index says World Economic Forum report. ठीक है. Okay. Now, अब ये बताना है कि which country has got rank 1? Norway, Iceland, Finland, Switzerland. बताइए. Global gender index में rank 1 किसको मिला है? Yes, very good. The right answer is Iceland. So 2 is the right answer. Gauri, Priya Chavan, Jyoti, Gopal, Sani Ansari, you all are right. देख सकते हो, rank 1 Iceland, rank 2 is Norway, and 127 is India's rank. ठीक है. So just have an idea. Rank 1 याद रखना, इंडिया की रैंक याद रखना. जब भी रैंकिंग निकले ना, 3 चीज याद रखना. First rank 1, India's rank, and who comes up with the report. किसकी ये रिपोर्ट है? जैसे यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है. India's rank here is 127, rank 1 is Iceland. ठीक है. तो ये 3 चीज किसी भी रैंक में याद रखने का है. ठीक है. बाकी सब नहीं याद रखना, दूसरे कंट्री का याद रखना बहुत मुश्किल है. ठीक है. नेबरिंग कंट्रीज का कौन याद रखेगा, बट इंडिया के रैंक याद रखना. इसे क्वेश्चन आया हुआ है. रैंक 1 और इंडियाज रैंक एंड हु कम्स अप विद द रिपोर्ट. ये 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है. इंडियाज रैंक पर इस तरह क्वेश्चन आ चुका है क्लैट में, सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग. ठीक है. लास्ट ईयर 135 था, अब 127 हो गया. तो ये वाला याद रखना है, इस साल वाला. लास्ट ईयर वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट इस साल वाला याद रखना है. ठीक है. ओके. यस. अलाइज वो बिलियंस टू रिबिल्ड. वोज मतलब होता है कसम खाना, प्लेज, है ना. सो जो यूक्रेन के फ्रेंड हैं, दे हैव प्लेज्ड टू रिबिल्ड यूक्रेन. एट लंदन कॉन्फ्रेंस हुआ था अभी. दे हैव प्लेज्ड कि यूक्रेन को हम लोग दोबारा बनाएंगे एंड ऑल, है ना. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एट $400 बिलियन. दोबारा कंस्ट्रक्ट करने में $400 बिलियन लगेंगे, व्हाटएवर द लॉसेस हैव हैपेंड एंड ऑल. ओके. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. गति शक्ति मैंने पहले बताया है, बट प्लीज रीड इट. आई मीन गति शक्ति हैज 7 पिलर्स एंड ऑल, है ना. रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज, लॉजिस्टिक्स. सो रीड ऑल दो 7 एंड गति शक्ति के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेना. ठीक है. बिकॉज दैट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. Please subscribe to our channel, follow us on Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day. And please press the like button.